ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक शॉर्ट मीटअप है विद साहिल हु इज कंडक्टिंग द बॉन्ड टेक्नोफंडा सेशंस। बेसिकली लास्ट वेबिनार जो हमने लिया था बॉन्ड टेक्नोफंडा के ऊपर, उसमें साहिल ने आप सबको बताया था कि हम लोग क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं वाइल एनालाइजिंग हमें बॉन्ड में किस तरह की स्ट्रैटेजी बना के चलना है। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, हम लोग फिस्कल पॉलिसीज को स्टडी करते हैं, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टडी करते हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आज के सेशन का एजेंडा है कि सपोज आपने फैक्टर्स को स्टडी कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको बॉन्ड में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, क्या क्या तरह की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, राइट? तो साहिल विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम हेयर नाउ। 30 मिनट्स का सेशन है, एक शॉर्ट क्रिस्प सेशन है, ताकि जो लोग लास्ट सेशन किए थे उनके मन में एक डाउट रह गया था कि अल्टीमेटली करना क्या है, कैसे हम उन एनालिसिस को यूज करेंगे इन टेकिंग द पोजीशंस इन बॉन्ड्स। तो वही इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, समझिए अच्छे से, एंड अगर आपको इंटरेस्ट आया देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर बॉन्ड टेक्नोफंडा प्रोग्राम, राइट? तो साहिल, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ साहिल, तो आप यहाँ से सेशन को आगे लेके जा सकते हो। यस साहिल। Very good evening. Thanks a lot, sir. Uh, and happy Makar Sankranti to all of you. A few of us must be celebrating it as the start of the new year. So first of all, praying to the God and all the teachers for their good wishes, and hopefully we have a good interaction today as well as in the Bond Techno Funda program. So basically, what I wanted to share with you guys is, I would like to start with a quote from one of my favorite hedge fund managers. He said once, "Cash is trash." You might be able to know. He's quite a famous person, so I would not name him. Somebody whom I followed from very beginning. So the first time when I heard this word, it had different meaning. Second time, when specifically when I heard it in 2008, it has a separate meaning, different meaning. In 2020, it had separate meaning. I had put up a independent mail as well to him. Sir, in last 20 years, I could infer from this very sentence 4 or 5 different meanings. What do you mean to say? What he replied on that he's very means generous and humble person. He replied on that very request of mine, and he said, "Cash is for those who don't know asset allocation. Cash is for those who let their fear overrun their investment philosophy. Cash is for those who don't find the avenues to make money further." So now we are going to start with it. Generally, what we feel is when we are euphoric, when we are positive, when we are happy, whether it is the external economic environment, whether it is the internal domestic environment, or it is my personal finances. I have got good job, I have got promotion, I have good finances. So I'm happy, positive, I'm eager, and I'm willing to make investments. But at the same time, the issue comes is where? Generally, it is associated with my psyche. If I'm positive at my head, means at my back of my mind, I'm willing to take higher risks. Conversely, when I'm going through a lean patch, whether it was the corona or it was the 2008 subprime crisis led financial depression, or it is my personal issues, I'm not having good finances, I'm not expecting a job hike or pay hike or something like that, I want to be conservative. During conservative times, what I do is I try to limit my investments or my consumptions and try to put that thing into cash, or not to make money for me. So there was I would like to start from here because I would like to take from this personal and macroeconomic point to the strategy of portfolio investment. And when we are discussing about this thing, I am positive, I am having money. That does not mean the market is, or the asset class which I'm going to choose is going to earn money out of that. What I mean to say is, at 2007 peak,
when the Reliance IPO came, almost everybody tried to put money into the markets because people were positive, people were euphoria. There was euphoria in the air. It is infectious, and everybody wanted to get a share of the Reliance infra. If we look at today from that point of view, most of the people like to make investments in, say, it was you can say not only LIC. Earlier, if you say everybody was looking for the IPO of Paytm, I'm not counting the a little bad listings. Everybody was looking for the listing of Nykaa or something like that. What I mean to say is people are looking to put their money. They're willing to take risk. This is the result of euphoria. This is the result of the past previous performance. But 2 years down the line, 2020, March, April, May, June, nobody was looking to put money into equities. Nobody was looking to put money into debt markets. Nobody was looking to put money into anything other than bank FDRs or bank cash, which was the interest rate trashed from 8.5 to 5.5, because we wanted to go for security. Similarly, it happened in 2000, it happened in 2008, it happened in 2020, it might happen in 2022 or 24 or 25. These things keep on happening. These are cycles, 4-year cycle, 8-year cycle, we will discuss later. What I mean to say is, if I am positive, that does not mean that my positivity, my personal positivity should bring me to the exposure of a asset class, generally which is considered investment is equal to equities or taking एक higher बहुत risk. अच्छा पॉइंट लगा जो तुमने साहिल मुझे बोला अभी, ये मतलब जो आपने सबको बोला कि आप अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाली है। Yes, बहुत सारे yes, लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो इक्विटी में लगाना है। आप yes, ये भी तो देखो कि वो एसेट क्लास कैसा परफॉर्म करने वाली है। yes, एंड इसलिए लोग कर नहीं पाते। एक तो जो आपने रीजन बोला फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट तो है ही। जब हवा में सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप लगता है कि आप नहीं कमा रहे, तो कैश पे बैठना गुनाह की तरह लगता है, एक तरह से कि गुनाह yes, कर रहे हो yes, आप। yes, सेकेंडली, मेरे को लगता है लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि और एसेट क्लास में कैसे जा सकते हैं। तो yes, आप उसी पे लाइट डालो कि कैसे अपने अवेयर करें लोगों को कि हाँ बाकी एसेट क्लासेस भी है, उसमें एक कॉमन इन्वेस्टर भी स्ट्रेटेजीज बना सकता है, जैसे कि बॉन्ड हो yes, गया। तो yes, उसमें स्ट्रेटेजीज बना के आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो एट पीक टाइम्स, ताकि आप उस तरह के क्रैशेस से बच पाओ। yes. या Now just give you live examples. Uh, Generally, I call it a deflation play, or you can call it a counter trend play. The moment when we get the adverse news out, the moment when we get the intention of pulling money out of means pulling money out of riskier assets or investments. Generally, most of the people have investments in equity, whether direct equity or mutual fund or anything else. And when say the COVID hit, or subprime crisis hit, or the oil crisis hit, anything, something of those kind of things, when happens, people try to pull their money out. But it is equally important, the money which is put out, where you are going to go deploy it. Are you going to deploy it at 3% saving interest rate? Are you going to deploy it at uh, uh, a current account with zero interest? Or are you going to spend it? Eventually you are going to go get below the inflation rate of return. There is no fun in that. So how you are going to park your allocation? This is the basic point that we have come across with this bond technofunda, that diversification of our portfolio, whether we are risk averse as investors or risk taking assets, we need to put money in a diversified way so that we have a continuous stream of earning, we have a balanced return, as well as we have continuous flow of income. These kind of things, I'm sorry, equity might be giving thriller returns, but equity as an asset class is not going to give you continuous flow of cash. It is not going to give you regular flow or a consistent flow or a predetermined flow. All these things are going to be coming from the debt only. So when we hear the word debt, first that it comes to my mind is, as an investor, am I too risk averse? I'm just 25. I'm just 30. I'm just 28. I'm just beginning my job. I'm 21. I'm at 15. Why I'm putting into debt? Debt, one thing, once we put 100% into a particular asset,
once we put all in ourselves into one asset, this is going to play with my psychology. How it is going to play with my psychology? Psychology that once that 100 rupee becomes 90, 85, I am going to book my losses, get out. But if I know my 60% is in equity, my 20% is in debt, my 10% is in hybrid, and my 10% is cash. Just giving a hybrid example. What happens is, if I'm having a correction in equity, there's a possibility due to deflationary play, I'm going to get an appreciation in my debt. And the cash which I'm already holding, 10%, I'm able to deploy further back into equity or debt. Now we come to the strategies, how we are going to strategize. अब सबसे बड़ी बात ये आ गई, डेट में कितना पैसा लगाना है, डेट में कब पैसा लगाना है, और डेट में कहां पैसा लगाना है. This is what we are going to discuss. Well, आज मैं इसको complete नहीं कर पाऊंगा आधे घंटे में, but we are going to discuss on these very things. Debt, first of all, when it is a deflation, in deflationary play, it is going to be the biggest earner. I give you personal examples. In 2020, the maximum profit we could, as a institutional desk for our institution, book was through debt trading only. Similarly, it happened in 2008. It happened in 2000. It happened in 2000, 2001 as well, but I was not working at that point in time. I was studying like you guys, a lot of you guys. So I had experience of 2008, 2013, 2017, 2020. And it is not that only those periods you're going to return. But what I mean to say is, those are the periods, those kind of things which happens every 1 year. In every year you get an equity dip. Equity dip में, equity markets में 10 से 15% की dip हर एक 6 महीने 8 महीने में आती है. Equity में 25% की dip हर एक 2 साल में एक बार आती है. Equity में about 50% की dip हर एक 8 से 10 साल में एक बार आती है. And we are not gods that we are going to come to know that हाँ अब equity में correction शुरू है, अभी ये निफ्टी 18,500 से ऊपर नहीं जाएगी, जहां से टूट के 12,000 आएगी, मैं 18,000 से निकल के डेट में आ जाऊंगा, और जब वो 12,000 आएगी मैं दोबारा equity में चल जाऊंगा. We are not gods. But if I am having my proper asset allocation, because from 7,500 to 18,000, Nifty has climbed up. And if I am reducing my portfolio from equity right now and increasing my portfolio into debt on other segments where my money is safe, where I get continuous flow of income, where I get regular income as well as fixed income. I know determined income मुझे कितना वहां से आना है, how much I am going to fetch out of it. That is what my active portfolio management is. Now अब बात आ गई वो करना कैसे है. This is, I'm going to just, ये एक क्रक्स रहेगा. देखिए, मैं आपको, हम दोनों पॉइंट्स इकट्ठे लेके चलते हैं. वन इज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, वन इज इंडिविजुअल प्लेयर. मैं आपको पहले इंस्टीट्यूशनल व्यू से 5 मिनट में लूंगा, उसके बाद हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल. Say as an institution, as a banker, I'm a banker. Say as a banker, I procure my cost of funds. मेरे जो deposits आते हैं, for example, my cost of deposits are 5.25%. मुझे 5.25% पे मैं अपने cost of deposits लेता हूँ. ठीक है. Now मैंने अपना मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की. मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स. उसमें इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस आ गई, देन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, फिस्कल पॉलिसी आ गई, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, फिस्कल पॉलिसी आ गई, इंटरेस्ट रेट्स में या ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियोस क्या हो रहे हैं, ग्लोबल कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं, देयर आर intermarket plays, what is happening to the currency markets globally and locally, all those things clubbed together, we come to a scenario where we decide whether the interest rate cycle is going to go up or down. Means this is a projection. हम एक estimation निकालेंगे कि interest rate ऊपर को जाने वाला है कि interest rate नीचे को जाने वाला है. If the interest rates are going to be going up, इसमें बिजनेस साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. ऑब्वियसली वी विल डिस्कस एट लेंथ. इसमें हम एक पूरा टॉपिक ही रखेंगे. बिजनेस साइकिल हैज अ बिग रोल टू प्ले. हम इसमें डिसाइड करेंगे, हम इसमें देखेंगे सबसे पहले वी विल एनालाइज वेदर इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप और इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन. इसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, वेदर एक्रूअल बेस्ड स्ट्रेटजी रहेगी या ड्यूरेशन बेस्ड स्ट्रेटजी. सिंपल वर्ड्स में बताऊं, एक्रूअल बेस्ड तब रहेगी जब इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो अप. ड्यूरेशन प्ले तब रहेगा जब इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन. एक्रूअल में क्या होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए. एक्रूअल में क्या होता है, मैं क्या करता हूं, मैं अपनी इनकम फिक्स कर रहा हूं एंड फॉर शॉर्टर पीरियड रह रहा हूं. शॉर्टर टेन्योर क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द sources of funds which I am having. Suppose my ALM as a bank,
मेरी जो एसेट लायबिलिटी है उसमें जो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की जो मेरी मैक्सिमम या जो लेडर है वो प्रोक्योरमेंट है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने। ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं शॉर्टर टाइम पे रहूंगा, मैं 3 महीने से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद उसको फिर रोल ओवर करूंगा, फिर 6 महीने बाद फिर रोल ओवर करूंगा। पर्पस क्या होगा मेरा, मेरे को ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, मेरे पास आज पैसा आ गया 5.25% की कॉस्ट पे अगले 12 महीनों से 15 महीनों के लिए। मैंने क्या किया, 3 महीने के लिए पैसा लगाया या 6 महीने के लिए पैसा लगाया, फिर 3 महीने बाद उसको रिन्यू किया, 6 महीने बाद रिन्यू किया, क्योंकि आई नो आज मैंने 5.25% पे ले लिया, बट जो मैं पैसा डिप्लॉय कर रहा हूँ 3 महीने बाद उसका रेट हायर होगा, 6 महीने बाद और हायर होगा, सो दैट आई अर्न दैट एक्स्ट्रा स्प्रेड ओवर दैट। ये सिंपल सिंपल अगर हम लेके चले एक्रूवल में क्या चलेगा, मैंने क्या किया, मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर लिया। आज मैंने एक ऐसे बॉन्ड में लगाया जिसमें मुझे लिक्विडिटी रिस्क कम होगा, मुझे क्रेडिट रिस्क कम होगा, मुझे मार्केट रिस्क कम होगा, और वो शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा ताकि मैं उसको रोल ओवर करूं। ये हो गया ड्यूरेशन, सॉरी एक्रूवल प्ले। अगर इससे रिवर्स होता, मुझे लग रहा होता कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स फॉल डाउन करने हैं, फॉल डाउन में क्या होगा, फॉल डाउन में मैं ड्यूरेशन प्ले करूंगा। ड्यूरेशन प्ले क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि आज अगर बॉन्ड यील्ड 7% है, उस 7% से बॉन्ड यील्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6.5। व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले रिवर्स स्ट्रेटेजी। मैं क्या स्ट्रेटेजी करूंगा, मैं लॉन्गर ड्यूरेशन का बॉन्ड लूंगा, मैं लॉन्गर मेच्योरिटी का पेपर लूंगा, ताकि जब 7% से 6.5% की यील्ड आए मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन हो। सो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस आया, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट लगती है, क्योंकि यील्ड कम होगी तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो जब मैं कम प्राइस वाला बॉन्ड लूंगा और जब आगे जाने पे वो बॉन्ड्स का रेट, बॉन्ड्स की यील्ड टूटेगी और प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको प्रॉफिट पे बुक करूंगा। दैट इज अ ड्यूरेशन प्ले। एक्रूवल प्ले में मैं क्या कर रहा था, मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी है, मैं क्या कर रहा था, मैं छोटे पीरियड के लिए पैसा लगा रहा था ताकि मैं उसको रिन्यू करूं, और जितने पीरियड में मैं पैसा लगाऊं उसमें मैं उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म कर दूं। कैसे खत्म कर दूं, मैं एक फिक्स्ड मैच्योरिटी का, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, वी विल डिस्कस लेटर। बेसिकली ये हो गया, मैं एक्रूवल में जाऊंगा या मैं ड्यूरेशन में जाऊंगा। ठीक है, साहिल, मेरा एक इसके क्वेश्चन है साथ यहाँ पर। अगर आपका इंस्टीट्यूशंस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है हम एक्रोल बेस करेंगे या ड्यूरेशन प्ले करेंगे, थोड़ा सा हिंट, मेरे को पता है ऑब्वियसली कि हम ये सारी चीजें ट्रेनिंग में करने वाले हैं काफी डिटेल में, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा हिंट दे सकते हो कि टेक्निकल्स कैसे रोल प्ले सर करेंगे इसमें? मैं उस पे जाने वाला था, मैं उस पे ओके, जाने वाला था। ओके, Because I just tell you myself, my background is I started from as a you can say my front desk dealer, or you can say the investment officer of equity in my bank. ओके, I from equity I transited to forex, from forex I transited to debt. So forex and debt, which I aggressively do today now. So what I mean to say is, with the back of frame of mind of an equity trader, I wanted to be the portfolio manager of equity. From there I shifted to forex and debt. Why and how, this is a beautiful journey, and how that turned out to be, because as a banker you have very less room to play in equity and you have huge leg room to play in debt. And secondly, being the owner of the public money, you have more responsibilities and restrictions, and you have a SLR and other requirements which you have to make your money into debt. So now you have put a very good question. I was about to come to it. I'm a technician at heart, although I आपसे पढ़ा हूँ, FRM किया तो, but earlier I started as a CMT, so it is a charter market technician. वो technical analysis का है. I started from equity. I tried to use that on forex and debt. That applied beautifully, wonderfully well and very clearly. So अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, आज मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमने एक्रूअल और ड्यूरेशन प्ले पे डिस्कस किया, दैट इज अ प्ले ऑफ द थीम ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट. इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन थ्योरी पे बेस करके मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया. ये चीज तो सारी दुनिया कर रही है. हाउ आई एम गोइंग टू अर्न दैट एक्स्ट्रा बक, हाउ आई एम गोइंग टू अर्न दैट एक्स्ट्रा यील्ड, कि मैं एक तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5.25 है, प्लस जो मेरे कॉम्पिटिटर रिटर्न्स ले रहे हैं, मैंने उस 5.25 से मैंने 7.5 या 6.25 या 6.5 वट एक्स अमाउंट, मैंने अपनी रिटर्न कैसे लेके जानी है ट्रेजरी की टू बी नेट पॉजिटिव. हियर कम्स टेक्निकल एनालिसिस.
How technical analysis comes? Technical analysis comes, it tells me when to trade, when to go long, when to go short. Along with it, I have made some models, or we have made some models at our institution. We will discuss at length in our training module as well. What we are going to share over there is how much trading capital, how much trading quantity you are going to put, or how much trading capital you are going to invest in active bets, because the purpose is alpha generation. एक हो गया, हमने प्रिंसिपली डिसीजन लिया. प्रिंसिपल किस चीज का था? मैंने इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन पे काम किया, ड्यूरेशन प्ले में गया, लॉन्गर पेपर में गया, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए गया, या जब इंटरेस्ट रेट मुझे लगता था कि डाउनवर्ड आने हैं, जब मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड जाने हैं, मैं एक्रूवल पे गया, शॉर्ट एंड पे गया. इंस्टेड ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन मैं इंटरेस्ट रेट सेव करने पे गया, अपनी अमाउंट फिक्स करने पे गया, ताकि मुझे रेगुलर इनकम आए, मुझे फिक्स्ड इनकम आए, मुझे इंटरेस्ट रेट रिस्क ना लगे. अब how much capital I am going to put on trading, how much capital I am going to put on short term trading at risk? This is a very, very fundamental question for individual and for corporate desk. Whether it is a mutual fund, PMS, individual, मेरा अपने trading को कैसे लगाऊंगा? Here comes technical analysis, because technical analysis is the one which is going to give me the edge. वो edge कैसे देता है? वो हाँ, obviously उसके various studies हैं. मेरे पास मेरा interest rate की expectation आ गई. अब मुझे उस इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन को प्ले करना है. प्ले कैसे करना है? आई कैन गो लॉन्ग, आई कैन गो शॉर्ट. जब मैं इंटरेस्ट रेट हायर मूवमेंट में एक्सपेक्ट करता हूं, मैं दो जगह पे प्ले करूंगा. वन इज ऑन द शॉर्ट साइड ऑफ द मार्केट, एंड सेकंड इज जब मुझे मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशंस मिलती हैं. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ 2 days बैक. The bond yields hit, the 10-year bond yield hit 6.60. 6.60 उसने 10-year bond ने hit किया just momentarily, and the indicators which I use, मैं अभी दिखा नहीं सकता, मैं ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, I would have much lesser time. The indicators gave me beautiful indication of a, you can say they were giving divergences, and they were giving oversold conditions. So when we are oversold, when we are giving divergences from the price action, means the indicator is not able to fall irrespective the price is getting hammered, and they were very less volume. It was a clear indicator for me. It is saying me go long. Now what do you say? My long term or medium term expectation is interest rates to go high. This is a counter trend move, Right. Counter trend move, it will be a shorter term move. Right. Shorter term move, counter trend move, I will go with 50% of my trading capital. For example, had it been a longer term or interest rate expectation on the downward side, I would have gone with 10 lots. तो बेसिकली एग्रेशन कितना है वो अपने को बता रहा है. Obviously. And I just went with half of the ticket. I went with 3 lots. Rather below, I went 60% of my 50% portfolio. और कितने टाइम की पोजीशन होती है टेक्निकल्स की? 1 दिन 2 दिन? Sir, technical की position, it might be a few hours. It might be a few days, as long as the indicator and the pattern is suffice. But generally, wo not more than 10 days. अच्छा. Maximum it will be week to 2 weeks. Otherwise, it can be a few weeks. A few hours or a few days. Generally, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेरा फंडामेंटल्स भी मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है और मेरा टेक्निकल्स भी सेम डायरेक्शन दे रहा है, तो मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा. फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगा पोजीशंस. लाइट रखूंगा. देखो, एक तो मैं पोजीशन साइजिंग लाइट रखूंगा, दूसरा मैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कम रखूंगा. समझ गए. मैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मुझे 3 to 5 बिप्स का बॉन्ड यील्ड का फायदा मिलेगा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा. अगर मैं अलाइंड हूं ऑन बोथ साइड्स, व्हाट आई डू, माय पोजीशन साइज इंस्टेड ऑफ 3, आई वुड हैव गॉन फॉर 8 or 7. समझ गया. And instead of expecting 3 to 4 bips of 3 to 5 bips of yield benefit, I would have gone for 8 to 15 bips या 8 to 10 bips. Okay. So उसमें क्या होगा? इसमें जहां पे मैंने करीब, you can say, चलो वो हम डिस्कस अदरवाइज भी ट्रेडिंग में करेंगे, जहां पे मैंने आज की डेट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने 2 से 3 लाख एक ट्रेडिंग पोजीशन में कमाना है, वहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैंने एक ट्रेडिंग पोजीशन में 12 लाख 15 लाख कमाना है. ठीक है, बाकी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी. और रिटेल के लिए क्या है? इंस्टीट्यूशंस के लिए तो समझ में आया. रिटेल के लिए इसमें क्या चीज रहेगी? मतलब क्योंकि हमारे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इक्विटी ट्रेडर्स हैं और रिटायर्ड हैं और चाहेंगे कि बॉन्ड में भी हम जाएं ताकि एक सेफ्टी फैक्टर भी उनको मिले.
तो Sir, उनके लिए इसमें से क्या चीज रेलेवेंट रहेगी? सर देखिए, to begin with, I don't want to go flashy. To begin with, to start in debt market, India, we are at the inception. Just the influx आ रहा है bond market का, and you will see next 3 years, bond market is going to increase like anything. Reason, जो अभी आरबीआई की एक स्कीम आई है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, उसमें आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे, वो कुड यू इमेजिन 3 years डाउन द रोड, मैं पहले 3 साल पहले ये कभी सोच नहीं सकता था, मैंने आज अपने बैंक की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे को 5 crore का ट्रेडिंग लॉट है. आई कुड हैव नेवर थॉट कि मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, चाहे मुझे जितना मर्जी ट्रेडिंग दिख रहा है. टुडे मैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट में जाऊंगा, उसमें अकाउंट खुलने में 2 घंटे नहीं लगते, अकाउंट खुल गया, आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे एनडीएस ओम में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ मैं वहां पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, एंड विद जीरो कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज नहीं लेता. आरबीआई ने अच्छा. एनडीएस ओम पे सीसीआईएल के थ्रू जो मुझे इंस्टीट्यूशन को, बैंक को मिलता है, सेम एक रिटेल इंडिविजुअल को मिल रहा है. एक नॉट इवन अ सिंगल पेनी दे आर गोइंग टू चार्ज, जीरो इंटरेस्ट फ्री, ब्रोकरेज फ्री. 10,000 रुपए से वो स्टार्ट है. अपनी मर्जी का पेपर उठा लो, चाहे वो ऑक्शन में उठाओ, चाहे सेकेंडरी मार्केट में उठाओ. और उससे भी बढ़िया चीज, ये चलो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे बढ़िया चीज, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज एट द इनफ्लक्स पॉइंट ऑफ इंक्लूजन इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस. आई टेल यू, 6 महीने पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 5.8% 10-year बॉन्ड से, personally we had an expectation of it rising to 650 to 670. It has already touched 660. So it is somewhere around where we were expecting के bond yield कहाँ पे top out कर सकती हैं. In next year, I suppose, in next financial year, Indian gilts, Indian bonds, government security bonds are going to be part of the global traded indices. Just imagine, आप जहाँ जिस ETF में US 10-year bond paper चल रहा है, German 10-year चल रहा है, Japanese 10-year चल रहा है, वहाँ पे Indian G-Sec 10-year चल रहा है. Look at the amount of volume and liquidity that is going to provide to Indian market. I'm not saying कि price appreciation देगा या depreciation देगा. What I'm saying, the transparency, the amount of liquidity and the kind of governance it will provide, it is going to be a humongous platform. नहीं, इसका आज मतलब की ये भी है कि इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा. सर And रिटेल का बढ़ेगा, रिटेल का भी Government- बढ़ेगा. करेक्ट. हाँ, हाँ. गवर्नमेंट कैटेगोरिकली कह चुकी है कि हमने, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से हम पंप प्रीमिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, जो हम डेट ले रहे हैं, वो मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशन से लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरा रिटेल इन्वेस्टर है वो उसमें पार्टिसिपेट करे. उसको भी मैं आपको फायदा एक और गवर्नमेंट को भी फायदा है. मैं आपको एक पर्सनल अपनी नोशन देता हूँ. से आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, जो मुझे 2020 जनवरी में मुझे अपनी एफडी पे, जहां पे 7.5% का रिटर्न मिल रहा था, आज मुझे वो 5%, 5.5 का मिल रहा है. 2% इंटरेस्ट रेट लॉस, आई एम स्ट्रेट अवे इन 1.5 year. आई एम नॉट गोइंग टू अर्न एंड माई एक्सपेंसेस आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस. और अगर मुझे बिना किसी खर्चे के आरबीआई का प्लेटफॉर्म मुझे 10-year पेपर आज की डेट में 6.5 पे मिल रहा है, मोर देन 1% स्ट्रेट आर्बिट्राज. मैं अगर 15-year पेपर लूंगा, मुझे वो आज 7% पे मिल रहा है. Got it. So why not? People will love to go at that very place. So eventually this is a huge market. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ ट्रेडर बनाएं, मैं तो कहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनको ओवर इट विल बी अ जर्नी सर. मैं आई एम नॉट गोइंग टू से कि हम ये 4-5 सेशंस में आपको मैं एक एक्सपर्ट वो ट्रेडर बना दूंगा. यू विल हैव द चेकलिस्ट, यू विल नो विच डायरेक्शन टू प्ले, बट इट इज अ जर्नी. हाँ, ये जरूर है कि अगर हम जुड़े रहते हैं 6 महीने, साल, 1.5 साल, यू विल बी प्रोफिशिएंट एंड आई विल कीप ऑन गिविंग माई 100% इनपुट्स, जो मैं अपने एनालिसिस अपने डेस्क के लिए करता हूँ. आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद द ग्रुप सो दैट दे गेट वो जो पॉपअप्स आते हैं ना, डिफरेंट पॉपअप्स, टाइमली पॉपअप्स, दे विल हेल्प यू ग्रो इन दैट. लर्निंग में भी हेल्प करते हैं और पैसा बनाने में तो हेल्प करेंगे. तो रिटेल के because- लिए, हाँ, रिटेल के लिए साहिल, जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्रूअल प्ले हो गया, ड्यूरेशन प्ले हो गया, टेक्निकल्स भी है, रिटेल के लिए भी तीनों चीजें हैं या रिटेल जनरली टेक्निकल्स ही करेगा? नहीं सर, मेरा जो व्यू है पर्सनली, टू स्टार्ट विद द रिटेल मस्ट फोकस ऑन द फंडामेंटल्स. रीजन बीइंग, आप खुद सर इक्विटी मार्केट प्लेयर हो. इक्विटी में हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मार्केट गिरनी चाहिए थी, मार्केट बढ़ गई.
हम कहते हैं कि एक बैड न्यूज आई थी, बैड न्यूज से मार्केट सुबह डाउन खुली बट एंड ओपन हाई हो गई. हम्म. Those kind of things are very less in that, because that is a very very close to fundamental market. I started loving, or you can say the love of the debt market started in me just because of this plain thing. From 2006 to 2008 or 9, I was a purely equity trader or investor for my personal as well as well my desk. It was 2008 which redefined it to me that it is not that you are only going to make money by staying in debt. It is never possible. Once you are into debt, in equity alone is not going to give you the returns what you expect or what you deserve. Once you have to have a balanced portfolio, once you have the flavor of the debt, I'm not saying go for 70% of debt, that has to be somewhere between 20 to 40%. But that is going to balance your portfolio, keep your nerves out of the system, and give you a continuous interest rate free risk. नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आजकल जैसे मेरे इक्विटी प्लेयर में काफी सारे लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, दे हैव बिग चंक ऑफ मनी, करोड़ में उनका पोर्टफोलियो है, तो दे आर वेरी यू कैन से बहुत डरे हुए हैं कि मार्केट टॉप आउट तो नहीं कर जाएगी, टॉप आउट कर दिया तो सीधा 40-50 लाख रुपए ऐसे निकल जाएगा, तो क्या करें उस केस में? वो एग्जिट भी नहीं कर पा रहे, एग्जिट करते हैं तो मार्केट 2 दिन बढ़ती है तो उनको फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और अगर एंटर रहते हैं 2 दिन गिरती है तब उनको डर लग जाता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि एक डाउन रैली स्टार्ट हो जाए. तो उस केस में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो एक फियर मैनेजमेंट भी है ना मार्केट में, वो बहुत जरूरी है. वो फियर मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन से आएगी, और डाइवर्सिफिकेशन खाली इक्विटी के अंदर नहीं, आप अक्रॉस एसेट क्लासेस करो, आप बॉन्ड में भी जाओ. जब मार्केट गिरती है ना, तब वो बॉन्ड का 3%, 4%, 5% ही बहुत अच्छा लगेगा, राइट? तब ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट कैपिटल बच गया होता, रिटर्न कमाना तो दूर की बात. हाँ सर, प्लस जो कैपिटल एप्रिसिएशन आनी है, वो तो जो आनी है. कैपिटल हाँ. एप्रिसिएशन है, इंस्टेड ऑफ वन वे वी आर गेटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन, हियर वी आर गेटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन. इट गिव्स यू द मोमेंटम. राइट ये आपको राइट लिक्विडिटी फ्लो देता है. राइट. नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए मेरे मैं ख्याल एक से. चीज और करता हूँ, हाँ. मैं एक चीज और करता हूँ, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक वी हैव वेरी लेस टाइम. हम्म. मैं एक इक्विटी का एनालिसिस अपने ग्रुप में या ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं इक्विटी में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट आई एक्सपेक्ट फॉर 2022. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है. मेरे ख्याल से साहिल थोड़ा सा बियरिश है, तो इसलिए नहीं, साहिल मैं बेरिश नहीं हूँ. व्हाट आई मीन टू से इज दैट what we can expect from the markets. Obviously market is a master. I have to be in the market on the side where the market is. But right. if I have the analysis with me, that what can happen, it gives me just a little added advantage to generate that alpha. Just for that. Definitely. ठीक है. तो I think it was a great session, साहिल. And बाकी सारे लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आप दो तरह के क्राउड्स के लिए बहुत रेलेवेंट है ये. एक तो जो स्टूडेंट्स लोग हैं, कल को वो इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहते हैं इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेस, तो उनको बॉन्ड में घुसना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जैसा साहिल ने बोला कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज है वो काफी बढ़ने वाली है बॉन्ड मार्केट के अंदर. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी फाइनेंस स्टूडेंट्स है, मतलब मैं तो फाइनेंस ही पढ़ाता हूँ, तो सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, दे हैव दैट एक्सपोजर टू बॉन्ड, बट उनका वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है कि एक्चुअल में एनालिसिस कैसे करना है, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को कैसे जोड़ना है, एक्चुअल में टेक्निकल्स को कैसे जोड़ना है, एक्चुअल में स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है. ड्यूरेशन निकालना आता है, बट ड्यूरेशन के साथ खेलना कैसे है वो नहीं आता. तो वो आपको एक आइडिया मिलेगा. सेकेंडली, जो खासकर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, बहुत डरे हुए हैं मार्केट्स में, चाहे प्रॉफिट पे बैठे तब भी डरे हुए हैं, तो उनको अगर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें. आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगने वाला है, एज वी सेड. एंड वी विल हैव अ चेकलिस्ट जहां पर हम लोग पूरा एक आपको पैरामीटर्स सिखाएंगे सारे, एंड आप उस पैरामीटर्स को खुद भरोगे कि कौन सा पैरामीटर क्या सजेस्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी ऑल विल टेक द ट्रेड्स एंड सी बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस की उस ट्रेड में क्या हुआ होता. एंड उसके अलावा हमारा कंटिन्यूअस सपोर्ट रहेगा ही. दिस group that will be made for the participants, that will be a continuous group जहां पर अपने analysis participants भी share करेंगे, हम लोग भी share करते रहेंगे, right? तो अगर आप interested हो तो please contact us, and I'm really thankful साहिल कि आपने आज time निकाला. कल से session है, तो best of luck. मेरे को लगता है बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है, एंड मेरे को ऐसा प्राउड फील होता है, मेरे को लगता है, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, कि आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कंटेंट निकाला है, क्योंकि आने वाला टाइम बॉन्ड का होने वाला है. तो आई थिंक वी आर द
फर्स्ट मूवर जो इस स्पेस के अंदर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उससे फायदा उठा पाएंगे, राइट? सो थैंक यू साहिल, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू। Yeah, thank you.